First of all, I welcome all the students who are attending this live lecture, which is organized by the Genius Science YouTube channel. Myself, Dr. S.S. Bellale from Dayanand Science College, Latur. Today we shall discuss the problems based on the polar coordinate system. And actually this is a fourth set. Now see here, what is meant by polar coordinate system? Actually, in the last lecture we have seen that how to find out the trigonometric function by using the given trigonometric ratios. Means as like we have given sine 3 by 4, sine 3 by 5, then by using that trigonometric ratio, it is possible to find out the different trigonometric function, that is the remaining trigonometric function. That means first of all calculate the cos square theta, secondly calculate sin square tan theta, then cot theta, sec theta, cosec theta, whatever may be. Okay. Now we shall discuss new type, that is a polar coordinate system. Now polar coordinate system means what? Actually we know that the trigonometric ratios which are in terms of a Cartesian coordinate system. Cartesian coordinate system means in terms of x and y. ओके. आता या ठिकाणी जे ऑनलाईन आहेत विद्यार्थी, त्यामध्ये अत्यंत चांगल्या पद्धतीने ज्यांनी होमवर्क केलं त्यांचा मी थोडक्यात उल्लेख करतो. त्यामध्ये दमकोंडवाड अत्यंत चांगल्या पद्धतीने होमवर्क केलेला आहे, टोटल होमवर्क केलेला आहे, शेवाडेनी केलेला आहे, संदेशनी केलेला आहे, गरजेनी एक दोन प्रॉब्लेम सॉल्व केलेले आहेत, बाकीचे विद्यार्थ्यांनी केलेला, हां गौरवनी पण केलेला आहे, गरजेनी केलेला आहे, गरजेनी केलेला आहे, परत ओके चालू नाही चालतं ना, अच्छा अच्छा ओके, शेवाडेनी केलेला आहे. ठीक आहे. अशा पद्धतीनं या ठिकाणी आपण हे प्रॉब्लेम्स पाहिलेले आहेत. आता या ठिकाणी मी नेक्स्ट जो आन्सर घेतो तो म्हणजे तुम्हाला आता नवीन टाइप जे पाहणार आहोत ते म्हणजे पोलार कोऑर्डिनेट सिस्टीम. पोलार कोऑर्डिनेट सिस्टीम, up till we have studied the Cartesian coordinate system and the different formulae related to Cartesian coordinate system, that is the sin theta is equals to y, cos theta is equals to x, tan theta is equals to y by x, cot theta is equals to x by y, sec theta is equals to 1 by x, cosec theta is equals to 1 by y. ओके. अगर इसमें अगर पॉइंट दिया होता है और पॉइंट के आधार पे आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं, यूनिट सर्कल नहीं होता, तो यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल्स टू वाई बाय आर, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एक्स बाय आर, सेक थीटा इज इक्वल्स टू आर बाय एक्स, कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू आर बाय वाई. इसी तरह से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम पॉइंट्स कैलकुलेट करते हैं, उसी आधार पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने फाइंड आउट कर दिया है. अभी क्या करना है, देखो यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे देखना है. पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है देखो, तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में यहाँ पे जो पॉइंट रिप्रेजेंट होता है, ये देखो पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई विच इज इन टर्म्स ऑफ अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट. Here this point P is in terms of x and y which is in the Cartesian coordinate. Now represent this point P x y in the polar coordinate. Polar coordinate means what? In terms of theta and this radius r. In terms of theta and radius r. Representation of points in terms of theta and r is called as polar coordinate. Here consider O as the origin, OX as x-axis, Px comma y is any point in the plane. Let OP is equals to r, angle of measure of angle XOP is equals to theta. Then the ordered pair r comma theta determines the position of the point P. Here r comma theta is called the polar coordinate. R means radius
which is obtained by using a formula Pythagoras rule. R square is equals to x square plus y square, therefore R is equals to root of x square plus y square. ओके, तो इसी तरह से हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं. देन hence r theta is called as the polar coordinates of a point P. The fixed point O is called the pole and the fixed ray OX is called x axis. Okay, now how to calculate these coordinates here? The Cartesian coordinate on the point PR comma theta, here PR comma theta will be given by the relation x is equals to r cos theta, y is equals to r sin theta. आता हे x is equals to r cos theta कसं येतं पहा. See this in a right angle triangle, see in this right angle triangle angle A, this angle is A is called as a 90 degree. In triangle OAP, measure of angle A is equals to 90 degree. Then we can find sin theta and cos theta. Sin theta is equals to opposite side by hypotenuse side. Opposite side means y, hypotenuse means r. Therefore y is equals to r sin theta. Suppose this is equation number 1. Also x is equals to, आता दूसरा कसा येतो पहा, cos theta is equals to adjacent side by hypotenuse. Therefore x is equals to r cos theta. This is equation 2nd. This is equation 1st. Means representation of x and y. X and y are called as a Cartesian coordinate. यहाँ पे जो x और y इसमें पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन होता है तो हम इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहते हैं. अगर x की वैल्यू हम थीटा के फॉर्म में r के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम पोलर कोऑर्डिनेट्स कहते हैं. यहाँ पे देख लीजिए, y means r sin theta, x means r cos theta. This is called as a polar coordinates. Therefore the coordinates of a point P are, P is x comma y, which is denoted by r cos theta comma r sin theta. मग या ठिकाणी याला कार्टेशियन कोऑर्डिनेट म्हणतो आणि यालाच काय म्हणतो, पोलर कोऑर्डिनेट. तर सर्वांनी काय करा, लक्षात ठेवा आता फॉर्म्युला. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट म्हटलं की पी एक्स कॉमा वाय असतो, म्हणजे एक्स ॲक्सिसवरील डिस्टन्स एक्स, व्हर्टिकल डिस्टन्स म्हणजे वाय, पी एक्स कॉमा वाय. दिस पॉईंट इज कॉल्ड एज अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट. याला कार्टेशियन कोऑर्डिनेट म्हणतात, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट. आणि हा जो आर आणि थीटाच्या फॉर्ममध्ये असतो त्याला पोलर कोऑर्डिनेट्स. मग कधीही तुम्हाला कुणीही जर विचारलं तर एखाद्या पॉईंटचे पोलर कोऑर्डिनेट सांगा म्हटलं तर आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा. आता हे कसे काढले तुम्हाला तर लक्षात येत असेल. डायरेक्ट साइन थीटाचा फॉर्म्युला वापरा, अपोजिट साइड बाय हायपोटेन्यूस काटकोन त्रिकोणामध्ये, आणि हा अँगल थीटा आहे. अपोजिट साइड बाय हायपोटेन्यूस मीन्स वाय डिवाइड बाय आर. वायची किंमत निघते आर साइन थीटा. ओके, त्यानंतर मुलं काय म्हणतात पहा, काय रे अश्विनी काय म्हणते पहा, सर आधीच्या लेक्चर्सच्या लिंक पाठवाल का. ओके. सेकंड, also cos theta is equals to x divided by r, means x is equals to r cos theta. यहाँ पे x की वैल्यू हम r cos theta में रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये देखो, ये हो गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड पोलर कोऑर्डिनेट. तर अश्विनी तुला ते सर्व लिंक्स भेटून जातील. तू जीनियस सायन्स यूट्यूब चॅनलवर जा आणि पाठीमागचे सर्वच्या सर्व चेक कर, सर्व व्हिडिओ तुला भेटून जातील. सो दिस इज अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट and polar coordinate. Therefore see this, the Cartesian coordinate of a point P, which is commonly represented by r comma theta and given by the relation x is equals to r cos theta, y is equals to r sin theta. From this we get by squaring आणि ॲडिंग. आता x स्क्वेअर आणि y स्क्वेअरची स्क्वेअरिंग आणि ॲडिशन केला तर कसं येतं पहा. By squaring and addition means x is equals to r cos theta
y इज इक्वल्स टू आर साइन थिटा, यांची स्क्वेअरिंग आणि ॲडिशन करा, म्हणजेच एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर इज इक्वल्स टू आर स्क्वेअर कॉस स्क्वेअर थिटा प्लस आर स्क्वेअर साइन स्क्वेअर थिटा. आर स्क्वेअर कॉमन काढा, cos square theta plus sin square theta. What is the value of cos square theta plus sin square theta? That is 1. That is equals to r square. That is x square plus y square equals to r square. Therefore, r is equals to root of x square plus y square. This gives the same relation. हे म्हणजे तुम्हाला सेम रिलेशन देऊन जाईल जे आपण अगोदर वापरत होतो ते रिलेशन. तर या ठिकाणी मी हिंट सांगतो तुम्हाला. आता टॅन थिटा म्हणजे कसा कॅल्क्युलेट केला पहा, इथं डायग्राममध्ये पहा. टॅन थिटा म्हणजे अपोजिट साईड बाय ॲडजेसंट साईड. अपोजिट साईड कोणती आहे? पी ए. ॲडजेसंट साईड कोणती आहे? ओ ए. पी ए डिवाइड बाय ओ ए म्हणजेच या ठिकाणी वाय बाय एक्स. ओके, तर अशा पद्धतीनं आपण कार्टेशियन कोऑर्डिनेट म्हणजे आर इंटू थिटा सियर. हां, तो नोट दिस. First, Cartesian coordinate, that is p into x comma y. Polar coordinate, means p into r comma theta. It is also denoted by आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा. इसमें जो एक्स की वैल्यू रहती है वो एक्स इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा, आर इज इक्वल्स टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ये जो फार्मूले नोट डाउन कर लीजिए. ये सब जो नोट है, शॉर्टकट जो फार्मूले है वो आप नोट डाउन कर लीजिए. इसी आधार पे आपको कैलकुलेट करना है. तो हम पोलर कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालते हैं. तो ये हो गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट. अभी यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मीन्स एक्स कॉमा वाई, पोलर कोऑर्डिनेट मीन्स आर कॉमा थीटा. हम पोलर कोऑर्डिनेट से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में बदल सकते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से पोलर कोऑर्डिनेट में बदल सकते हैं. तो ये हो गए 2-3 फार्मूले. और तीसरा जो फार्मूला है, टैन थीटा इज इक्वल्स टू वाई बाई एक्स, देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू टैन इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स. यहाँ पे 3 फार्मूले आप फॉलो कीजिए. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, आतापर्यंत जे आपण ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स पाहिले ते कार्टेशियन कोऑर्डिनेटमध्ये, म्हणजे साइन थीटा इज इक्वल्स टू वाय कोऑर्डिनेट, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एक्स कोऑर्डिनेट, या ठिकाणी या पद्धतीनं आपण कॅल्क्युलेट केलेले आहेत. तर आता हे फॉर्म्युले तुम्ही आता लक्षात ठेवून टाका. पोलर कोऑर्डिनेट म्हणजे पी आर कॉमा थीटा म्हणजे आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा. एक्स इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा, देयरफॉर आर इज इक्वल्स टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ओके, तो हम अभी एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फॉलोइंग पोलर कोऑर्डिनेट्स. ये देखो, ये पोलर कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, इसी आधार पे हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकालना है. तो फर्स्ट प्रॉब्लम कौन सा है? देखो 3,90. polar coordinate 3,90 degree. Given that P is a point r comma theta which is equals to, polar coordinate में common representation कैसा होता है? P is r comma theta and which is given by 3,90 degree. Therefore r is equals to 3, theta is equals to 90 degree और it is also denoted by in radians pi by 2. तो हमें अभी क्या करना है? पोलर कोऑर्डिनेट से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ट्रांसफर करना है. सी दिस, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फ्रॉम द पॉइंट्स हुज पोलर कोऑर्डिनेट्स आर गिवन. पोलर कोऑर्डिनेट्स दिलेला आहे, याच्या आधारावर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट काढायचे आहेत. म्हणजे काय काढावं लागणार आहे तुम्हाला? एक्स आणि वाय काढावं लागणार आहेत. मग एक्स साठी फॉर्म्युला आहे, वी हॅव, व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर एक्स इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा.
हां चला, कोण आहेत ऑनलाईन? कॉस 90ची व्हॅल्यू सांगायचे. जेवढे विद्यार्थी ऑनलाईन आहेत त्यांनी फर्स्ट आन्सर द्यायचं सोबत सोबत. कॉस 90ची व्हॅल्यू आपल्याला गरज आहे. तर कॉस 90 मला सांगा. ओके, नाउ सी दिस कॉस 90 की वैल्यू देख लीजिए. हाँ बच्चों, हाँ तो हाँ ये फार्मूला यूज करना, एक्स इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा एंड पुट अप दिस वैल्यू. एक्स इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आर, आर इज 3 इंटू कॉस ऑफ 90. हाँ बराबर है. कॉस 90 की वैल्यू रॉन्ग रॉन्ग. कॉस 90 की वैल्यू गौरव नहीं, वैसा नहीं रहता. संदेश वो नहीं रहता. करेक्ट. खैरनार करेक्ट. गौरव करेक्ट. सिरसाट करेक्ट. दमकोंडवार करेक्ट. गौरव और संदेश आपको टेबल अच्छी तरह से फॉलो करना है. हाँ तो 3 इंटू कॉस 90 मीन्स 0. दैट इज 3 इंटू 0 मीन्स 0. एक्स इज 0. Also calculate y. Also y equals to, what is the formula for y? Y is equals to r sin theta. देखो यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है, x इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा. अभी वो फार्मूले कैसे आ गए यहाँ पे मैंने दिखाई दिया. y इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा, x इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा. ये देखो साइन थीटा मीन्स अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूस y डिवाइड बाय आर. तो देख लीजिए अभी x की वैल्यू हो गई, y की वैल्यू r इंटू आर मीन्स व्हाट 3 इंटू साइन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 90. साइन 90 की वैल्यू कौन सी रहती है? देखो साइन 90 मीन्स y इज इक्वल्स टू 3 इंटू साइन 90 मीन्स 1. दैट इज y इज इक्वल्स टू 3. इसी तरह से x एंड y कैलकुलेट कर दिए और x एंड y को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोलते हैं. तो यहाँ पे यू हैव टू रिप्लेस दिस पोलर कोऑर्डिनेट इनटू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट. देयरफॉर हेंस द रिक्वायर्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर. हाँ ओके, शेवाडे बरोबर आहे, बेल्लाळे बरोबर आहे, दमकोंडवार बरोबर आहे, सिरसाट बरोबर आहे. हाँ देयरफॉर p इज इक्वल्स टू x कॉमा y इज इक्वल्स टू 0,3. मीन्स जो पॉइंट पोलर कोऑर्डिनेट में 3,90 था तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में 0, कितना आता है 3 आता है. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में 0,3. इसकी डायग्राम अगर आप निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हो. कैसे निकाल सकते हैं? सी दिस. हाँ कैसे निकाल सकते हो? सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस. हाँ सियर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. अभी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोले तो p 0,3. एक्स एक्सिस पे 0 है, वाई एक्सिस पे 3 है, तो कैसा रहता है 1 2 3. ये देखो 1 2 3. तो ये हो गया पॉइंट P की पोजीशन इन कार्टेशियन फॉर्म 0,3. और पोलर फॉर्म में कैसी पोजीशन है 3,90. यहाँ पे R3 होते हैं, डिग्री 90 में होते हैं. देखो ये लेंथ 3 आती है तो R हो गया 3 और एंगल हो गया 90. तो इसकी पोलर फॉर्म में ये कार्टेशियन हो गया, ये पोलर फॉर्म में 3,90 डिग्री. ये हो गया पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन. ओके, तो हम अभी दूसरा प्रॉब्लेम सॉल्व करते हैं. देखो इसमें क्या प्रॉब्लेम आहे देख लीजिए. काही अडचण असेल तर विचारा. काय केलेलं आहे पहा, आपल्याला प्रॉब्लेममध्ये पॉइंट पोलर फॉर्ममध्ये दिलेला आहे. पोलर फॉर्म म्हणजे आर आणि थीटाच्या फॉर्ममध्ये. पोलर फॉर्म म्हणजे कोणता फॉर्म आहे? आर आणि थीटाच्या फॉर्ममध्ये. त्याला कार्टेशियनमध्ये कन्वर्ट करायचे म्हणजे एक्स आणि वायच्या स्वरूपात काढायचे. म्हणून आपण काय केलं, गिवन दॅट p इज इक्वल्स टू आर कॉमा थीटा. मग आर म्हणजेच 3,90 डिग्री. आर इज इक्वल्स टू 3. पोलर कोऑर्डिनेटला आपण काय लिहितो आर कॉमा थीटा म्हणजे 3,90. आर इज इक्वल्स टू 3, थीटा इज इक्वल्स टू 90. नाउ वी हैव टू कन्वर्ट इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मीन्स x एंड y. x इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, x इज इक्वल्स टू 3 इंटू कॉस 90,
3 into 0, cos 90 की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0. Also y is equals to r into sin theta, y is equals to 3 into sin 90, 3 into 1. In this way we can obtain. Okay, now अभी हम इसको x और y को हम कार्टेशियन फॉर्म में लिखते हैं. ये हो गया कार्टेशियन फॉर्म. डायग्राम की ज़रूरत नहीं, खाली आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए इसलिए हमने डायग्राम निकाल दिए है. पॉइंट P कहाँ पे आता है? x, y मीन्स y एक्सिस पे पॉजिटिव 3 को पॉइंट आता है और ये 90 डिग्री का एंगल होता है ऑटोमेटिक. ये लेंथ 3 आती है मीन्स ये भी सेटिस्फाई होता है. ठीक है. सेकंड प्रॉब्लम वी शैल डिस्कस. सेकंड प्रॉब्लम व्हाट इज दैट? 1,180 डिग्री. सेकंड polar coordinate P is r comma theta 1,180 degree. Here r is equals to 1, theta is equals to 180 degree. हाँ, अभी कौन है ऑनलाइन तो बताइए मुझे. cos 180 डिग्री की वैल्यू क्या है? cos 180 की रिप्रेजेंटेशन करना है वैल्यू. वी हैव फॉर्मूला यूज करो. x इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, x इज इक्वल्स टू 1 इंटू कॉस 180 डिग्री, x इज इक्वल्स टू 1 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 180 डिग्री. कौन है ऑनलाइन? हाँ राइट संदेश, करेक्ट. cos 180 डिग्री इज -1. हाँ शेवाड़े करेक्ट. दैट इज 1 इंटू -1 मीन्स x इज इक्वल्स टू 1. ओके सिरसाट यू आर करेक्ट. हाँ चला, हाँ गर्जे बराबर है शेवाड़े. cos 180 डिग्री, हाँ ठीक है. आल्सो अभी हमें क्या निकालना है? y कोऑर्डिनेट निकालना है. y इज इक्वल्स टू r साइन थीटा, y is equals to 1 into sin 180 degree. What is the value of sin 180 degree? Sin 180 degree is equals to 0. That is equals to 1 into 0 means 0. Y is equals to 0. Hence, the Cartesian coordinates are P x comma y which is equals to -1, 0. अभी इसकी हम डायग्राम प्लॉट कर सकते हैं. कैसे प्लॉट कर सकते हैं? देखो, सपोज दिस इज x, दिस इज y. तो यहाँ पे 1 1 1 2 -1 -2 1 2 -1 -2. -1, 0 means which is present on x axis because y coordinate is 0. तो यहाँ पे P पॉइंट होता है. P ये हो गया P पॉइंट. अगर इसका तुम एंगल मेजर करते हो P पॉइंट का x एक्सिस है तो वो 180 डिग्री ऑटोमेटिक आता है और इसकी लेंथ 1 आती है. देखो ये लेंथ 1 लेंथ होता है ओरिजिन से और 180 डिग्री. इसी तरह से आप यस निकाल सकते हैं. ओके खैरनार करेक्ट, सिरसाट करेक्ट, गर्जे करेक्ट. तो ठीक है, इसी तरह से प्रॉब्लम हमें करना है. तो ठीक है, हम अभी दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं. थर्ड प्रॉब्लम, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट 2, 45 डिग्री. तो चलो हम निकाल सकते हैं. गिवन दैट P is 2, 45 degree which is denoted by, this is in polar form, therefore we can represent this form in r, theta. Therefore r is equals to 2, theta is equals to 45 degree. We have x is equals to r cos theta, x is equals to r means 2 cos 45. हाँ बताओ cos 45 की वैल्यू क्या आती है? cos 45 की वैल्यू 2 इंटू 1/√2, 2 डिवाइड बाय √2. अभी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं. 2 डिवाइड बाय √2 को कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? देखो 2 डिवाइड बाय √2 विच इज
इक्वल्स टू √2 इंटू √2 डिवाइड बाय √2 कैंसल, दैट इज 2 √2। ये देखो x की वैल्यू आती है √2। हाँ 1/√2 बरोबर, संदेश बरोबर, शीर्षाट करेक्ट। आल्सो y इज इक्वल्स टू r साइन थीटा। हाँ साइन 1/साइन की बताओ, साइन 45 की कितने आते हैं? r बोले तो 2 इंटू साइन 45, 2 इंटू, हाँ बराबर है दमकोंडवार का आंसर x का 1/√2, 2 डिवाइड बाय √2 दैट इज √2। हेंस the Cartesian coordinates of point P are P is equals to x comma y is equals to √2 comma √2। इसका ग्राफ जनरली ऐसा रहता है, यहाँ पे पॉइंट ये 45 P √2 comma √2, इसका एंगल 45 रहता है, ये 2 रहता है। ओके हाँ बराबर है, करेक्ट। तो हम अभी आगे दूसरे प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। देखो अभी हमें रिवर्स जाना है, तो इसके लिए ये जो फर्स्ट प्रॉब्लम है उसका मैं आपको होमवर्क के लिए प्रॉब्लम देता हूँ, आप कीजिए। फर्स्ट प्रॉब्लम 3,60 डिग्री, सेकंड क्रॉप प्रॉब्लम 4,90 डिग्री, थर्ड प्रॉब्लम 2,270 डिग्री, fourth problem that is 1,30 डिग्री। ये देखो इसका तुम्हें होमवर्क करना है। यहाँ पे जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं उस यहाँ पे जो पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं उसके आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्शन करना है। ठीक है, अभी सेकंड क्वेश्चन की तरफ आओ। व्हाट इज दैट सेकंड क्वेश्चन? फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स हुज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। मीन्स यहाँ पे आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, उसी आधार पे पोलर कोऑर्डिनेट बदलने का है। दैट मीन्स वी हैव गिवन दिस, यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया है, उसी आधार पे आपको किस में चेंज करना है? पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करना है। ठीक है, तो हम इसी आधार पे प्रॉब्लम सॉल्व करते। चलो राइट, फर्स्ट प्रॉब्लम okay, first problem, what is that? See this 5,5, number 1 5,5, this is in कार्टेशियन फॉर्म। एक्चुअली ये हमें कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है। गिवन दैट, व्हाट इज दैट वैल्यूज हियर? P is equals to 5,5। अगर कार्टेशियन फॉर्म में पॉइंट होता है तो उसे हम किस में लिख सकते हैं? दैट इज x, y। कार्टेशियन बोले तो x, y, पोलर बोले तो r, थीटा। थीटा मीन्स दैट इज एंगल। देयरफॉर x is equals to 5, y is equals to 5। But we know that, what we have to know? We have to know formula for r. How to calculate r? r means x square plus y square। ओके, रूट में x square plus y square होता है। इसके अगर डायग्राम आप देखना चाहते हैं तो ऐसे रहते हैं, प्लस प्लस है, यानी कि फर्स्ट क्वार्टर में तो 5,5 इस पॉइंट 5,5, तो ये वर्टिकल डिस्टेंस रहता है 5 और ये डिस्टेंस रहता है 5।
ये थीटा निकालना है और ये रेडियस निकालना है. r and theta means the polar coordinate. We have r square is equals to x square plus y square, 5 square plus 5 square, 25 plus 25, r square is equals to 50. Therefore, r is equals to, ये देखो, r square is equals to 50. Therefore, r is equals to root 50. Therefore, r is equals to 25 into 2. r is equals to 5 root 2. इसी तरह से हम जो हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, that means values of x and y are given. By using these values of x and y, it is possible to find out the value of r. Also हमें थीटा निकालना है. Also tan थीटा, ये फॉर्मूला आप याद रखिए. ये देखो, tan थीटा बोले तो y by x, tan theta is equals to, value of y is 5, x is 5, tan theta is equals to 1. अभी मुझे बताइए tan के कौन से एंगल की वैल्यू 1 रहती है? बट tan 45 की वैल्यू 1 रहती है. Therefore theta is equals to 45. देखो इसी तरह से लेना है. r पहले x and y are given. By using this x and y, you can calculate r square is equals to x square plus y square. Therefore r is equals to 5 root 2. Also tan theta is equals to y by x, tan theta is equals to 5 by 5 means 1. tan थीटा की वैल्यू 1 है, तो आपको मालूम है tan के कौन से एंगल की वैल्यू 1 रहती है? 45 की. बट tan 45 is equals to 1. Therefore theta is equals to 45. Okay. Therefore theta is equals to 45 degree. Okay. Now we have polar coordinates. P is equals to r comma theta. Put the value. R means what? 5 root 2. Theta means what? 45 degree. Theta means 45 degree. इसी तरह से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं. तो किस तरह से वैल्यू निकाल सकते हैं? अब एक बार फिर से ये प्रॉब्लम देख लीजिए. मैं एक बार फिर से प्रॉब्लम यहाँ पे रिवाइज करके देता हूँ. शेयर गिवन दैट, यहाँ पे सी 5,5, गिवन दैट P इज 5,5. कंसिडर करो यहाँ पे एक क्या करना है आपको, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है उसका पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना है. यहाँ पे जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है उसका पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना है. तो P इज इक्वल्स टू 5,5, दैट इज x कॉमा y, दैट इज x इज इक्वल्स टू 5, y इज इक्वल्स टू 5. ओके. तो यहाँ पे वी हैव r स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 25 plus 25. Therefore r is equals to 5 root 2. Also find this value. Okay. Thus we get the polar coordinate of 5,5 is 5 root 2, 5 root 2. Okay. Next. Now second problem, see this 1, root 3. Third, 1, root 3. Answer, given that P is 1, root 3, which is in polar form, which is in Cartesian form, that is x, y. Therefore x is equals to 1, y is equals to root 3.
सेकंड प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। ये देखो सेकंड प्रॉब्लम, वी हैव, अगर आपको पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्शन करना है तो पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्शन के लिए क्या कर सकते हैं हम, आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर 1 प्लस 3 4, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, देयरफॉर आर इज इक्वल्स टू 2। यहाँ पे प्लस और माइनस लेने की जरूरत नहीं, रेडियस ऑलवेज पॉजिटिव रहते हैं। आल्सो tan theta is equals to y by x, tan theta is equals to y means root 3 divided by x means 1, tan theta is equals to root 3, बट मुझे ये बताइए tan theta is equals to root 3 है तो थीटा कौन सा रहता है, tan के कौन से एंगल की वैल्यू रूट 3 रहते हैं, tan 60 के, tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू रूट 3, देयरफॉर theta is equals to 60 degree. Hence, see this, hence Cartesian coordinate is polar coordinate, polar coordinates are P is r comma theta, value of r is 2 and theta is 60 degree. Okay, in this way. Now let us consider third example, -1 comma -1. See this, -1 comma -1, -1 comma -1, given that P is equals to -1 comma -1, which is in Cartesian form, that means x comma y. Therefore x is equals to -1, y is equals to -1. We have to find out a polar coordinate. Polar coordinate means value of r and theta. We have r square is equals to x square plus y square, that is -1 square plus -1 square means 1 plus 1, that is equals to 2. R square is equals to 2, r is equals to root 2. Also tan theta is equals to y by x, that is tan theta is equals to -1 divided by -1, tan theta is equals to 1 minus 1, but tan 45 is equals to 1, therefore theta is equals to 45 degree. Hence the polar coordinates are P is equals to r comma theta, which is equals to root 2 comma 45 डिग्री। इसी तरह से आपको प्रॉब्लम अभी सॉल्व करना है। तो ये जो फोर्थ प्रॉब्लम है ये आप घर में सॉल्व कीजिए। अभी मैं होमवर्क के लिए और एक दो प्रॉब्लम देता हूँ। फिफ्थ प्रॉब्लम, -4 सिक्स्थ प्रॉब्लम रूट -4 सिक्स्थ प्रॉब्लम रूट 3 कॉमा 1। ये देखो ये तीन प्रॉब्लम आप होमवर्क के लिए कीजिए। फिर से मैं थोड़ा रिवाइज करता हूँ। यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोले तो पी एक्स कॉमा वाई, पोलर कोऑर्डिनेट बोले तो पी आर कॉमा थीटा, एंड द इंटर रिलेशन बिटवीन देम इज वाई इज एक्स इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, y is equals to r sin theta. These are the main formulas. See here, x is equals to r cos theta, y is equals to r sin theta, r is equals to root of x square plus y square, tan theta is equals to y by x. These are the formulae for the polar coordinate, and this is for
Cartesian coordinate. Therefore, by using these formulae, we can convert polar coordinate into the Cartesian coordinate and Cartesian coordinates into the polar coordinate. तो यहाँ पे हम रुकते हैं. ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये तुम कल होमवर्क लिख के कर दीजिए. ओके, गुड बाय.